Good evening, very good evening. Yeah, let's begin with the lecture now. So today we are gathered here to study about WS, that is writing skills. Okay, ninth standard writing skills. In writing skills, we have total three parts. First is Upapad Vibhakti. Okay, that is governing cases. In English, we called it as governing cases. Second is Nibandha, two Nibandhas. Some schools have two Nibandhas essays, and also we have translate into Sanskrit question. Today, let's begin with the very easy part first, that is Upapad Vibhakti. I think we have seen some part of it in the previous lectures. Still, we are going to revise it and we'll get to know how to solve this question based on Upapad Vibhakti. Okay, so this is for all entire as well as composite students, this part of Upapad Vibhakti. Essays will be only for entire students. Composite students won't have essay for ninth as well as 10th. Okay. Yes. So let's begin with Upapad Vibhakti. First, I'll tell you one sentence, and then if you have any doubt, you can raise your hand or you can drop your question in chat box as always. Yes. So Upapad Vibhakti is divided into basically two parts. It is consist of two parts, we can say, that is Avyayani and Dhatavaha. So Avyayani means the words which are indeclinables. They are never changing words. वो change नहीं होते कभी भी, irrespective of a gender, irrespective of a vachan, irrespective of vibhaktis etc. तो कोई भी विभक्ति, कोई भी gender या फिर कोई भी वचन में आप ये वर्ड जो है यानी कि अव्यय जो है वो एज इट इज यूज कर सकते हो. लाइक जस्ट एग्जांपल सह. सह मीन्स विथ. दिस अव्यय आई कैन यूज विथ एनी सेंटेंस, विथ एनी जेंडर, एनी नाउन. कैसे भी यूज करना है मुझे, तो आई हैव ओनली वन फॉर्म, दैट इज सह. ये कभी चेंज नहीं होने वाला है. तो ऐसे जो वर्ड्स है जो कभी चेंज नहीं होते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, वचन, केसेस एक्सेट्रा, उनको हम कहते हैं अव्यय. एंड व्हाट इज धातु? Quickly tell me, you know this term dhatu. We have seen it many times in a grammar part when we see vidhiling, lakar, lot, lakar, etc. Very good, Arman, Harshit, correct. Root verb or root word. Verb भी कह सकते हो या word भी कह सकते हो, but root basic है ये. तो धातु is a basic or a root word of any क्रियापद. जैसे कि हसती का रूट वर्ड है हस, खेलती का रूट वर्ड है खेल, पठती का रूट वर्ड है पठ, एंड सो ऑन. लाइकवाइज वी हैव मेनी धातुस इन संस्कृत. So this is what we called as dhatus. So upapad vibhakti is basically for avyayani as well as dhatus. Abhi what is upapada vibhakti? Upapada means nearby word and vibhakti means the expected case. जैसे कि हमें पता है कि हमें भी चॉइस होती है. ओके. जैसे कि many of you love black color, some of you may love red color, some of you have your favorite color as yellow, or we have a favorite dish, like some of you may love veg, some of you may love non-veg or anything else. Likewise, these avyayas and dhatus also have some likings or some favorite things. Okay. So some avyayas expect particular vibhakti. Some avyayas expect particular vibhaktis, that is called as upapada vibhakti. Also some धातुस expect particular vibhakti. उनको सिर्फ एक विभक्ति ही चाहिए जिसमें जो important word है that should be in that particular vibhakti, expected vibhakti, उसको हम कहेंगे upapada vibhakti. So specially it is nothing but a governing cases or a expected vibhaktis. Let's understand एग्जाम में आपको कैसे आने वाला है. तो बेसिकली वन वर्ड विल बी गिवन, लाइक जस्ट हियर वी हैव वर्ड विना. विना मीन्स विदाउट. ओके, विना मीन्स विदाउट. तो अभी बस ये एक वर्ड दिया हुआ रहेगा, इसका मीनिंग नहीं रहेगा, इस पे एक्सपेक्टेड केस भी नहीं लिखी हुई रहेगी. यू शुड नो और यू शुड हैव टू बाय हार्ट विच विभक्ति इज फेवरेट ऑफ विना. Vina loves the vibhaktis Dvitiya, Tritiya and Panchami. That means Vina expects that the vibhakti Dvitiya or Tritiya or Panchami should be present in the sentence whenever we are using this word Vina. Vina means without. Yes, Arman. Dvitiya, Tritiya as well as Panchami. कोई भी एक विभक्ति आप एग्जाम में यूज कर सकते हो.
So यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है and you can also see the beautiful picture behind. जलम और जलेन और जलात बिना न जीवनम. पानी के बिना जीवन नहीं है, बट पानी के बिना, विदाउट वाटर, ये जो वाटर वर्ड है विदाउट, ओके, इसके लिए हम कोई भी इसमें से विभक्ति यूज कर सकते हैं, आइदर द्वितीय और तृतीय और पंचमी. तो आपको 3 फॉर्म्स दिख रहे हैं. जलम इज द फॉर्म ऑफ द्वितीय विभक्ति, जलेन इज फॉर्म ऑफ तृतीय विभक्ति एंड जलात इज फॉर्म ऑफ पंचमी विभक्ति. तो इसमें से कोई एक फॉर्म भी लिखा, देन ऑल्सो यू विल स्कोर 1 मार्क. बट द ओनली कंडीशन इज, please be attentive everyone, please listen it carefully. The only condition is you should underline the word whichever is in expected vibhakti. You can use Vidya, Tritiya or Panchami by your choice, but it is compulsory to underline the word which is in expected vibhakti, which is indicated by the word बिना. बिना को जो विभक्ति पसंद है उसमें आप जो भी वर्ड लिख रहे हो उसको अंडरलाइन करना highly important है. Otherwise you will lose half mark for it. You will only get half mark for framing a question, for framing an answer, and half mark is there for underlining the expected vibhakti word. Are you getting me? Yes or no? Actually it is very easy question, but prepare होना बहुत important है. Okay, quickly open your notebook, write down the sentence jalam or jalena or jalatvina no jivanam. I know the sentences are also given in your textbook, but these are the simplified version of that sentences. So please do write it on your notebook. Once you're done, please let me know in the chat box. Okay, so Soham is, yeah, right, Soham. Yes, Soham. So your question is also correct. This is the another sentence. पानी के बिना जीवन नहीं है. If you want to add matsyaha, then you have to modify the sentence. मत्स्याः जलेन विना न जीवन्ति. ये जो वर्ड है जीवनम जाएगा जीवंती. फिश जो है वो पानी के बिना नहीं जी सकते हैं. नहीं जी सकते हैं के लिए हम कहते हैं न जीवंती. तो वो एक अलग सेंटेंस है. एंड दिस इज अ सिंपल सेंटेंस. जलम बिना न जीवनम, पानी के बिना किसी का भी जीवन नहीं है. एक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फिश दिखाए गए हैं. Okay, Soham. So this is another sentence, and the sentence you are saying is also correct, but you should use जीवंती. मत्स्याः जलेन विना न जीवन्ति. Or else you can by heart this sentence. Okay, let's move ahead to the second sentence. Next, avyay we have as sah. As I said, vina is without, sah is with, opposite word of vina. सह मीन्स विद. यस अरमान, करेक्ट. उसके साथ जाना, किसी के साथ जाना. तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो राम, सीता एंड लक्ष्मण आर देयर. टुगेदर दे आर गोइंग टू वनवास और इन जंगल और इन फॉरेस्ट. सो वी आर फ्रेमिंग अ सेंटेंस लाइक रामेण सह, राम के साथ सीता वनम गच्छति. और यू कैन ऑल्सो फ्रेम अ सेंटेंस रामेण सह लक्ष्मणम वनम गच्छति. Yes, this was there in 8th standard also, on few last pages of your textbook. This is also there in 9th standard textbook as उपपद विभक्ति. आप देख सकते हो, रम्य संस्कृतम का एक पार्ट है. टेक्स्ट में किधर भी आपको ये सेंटेंसेस मिल जाएंगे. 9th स्टैंडर्ड के इसमें थोड़े अलग सेंटेंसेस है, लिटिल बिट डिफिकल्ट.
बट टिल 10th स्टैंडर्ड आप एक ही सेंटेंस बाय हार्ट करके रख सकते हो फॉर द वर्ड सह, रामेण सह सीता वनम गच्छति। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे सह, दिस अव्यय एक्सपेक्ट्स तृतीया विभक्ति, सह को अपने साथ तृतीया विभक्ति ही पसंद है, तो जिसके साथ हमें जाना है, द वन हु इज योर कंपेनियन, it should be in tritiya vibhakti, and hence ramena sah sita vanam gacchati. Quickly write it down, then we'll move ahead. Yes, Arman, correct. Aniketena sah nikhila, nikhilah khelati. This is also correct. Okay. Hope you have written this sentence. Let's move ahead. A third avyay is alam. Alam means denying something, to know, to say no to something. कोई चीज को हमें रोकना है, ना बोलना है, तो हमें ये यूज करना है वर्ड अलम. यस, इनफ, डिनाइंग, करेक्ट. सो अलम शोकेन, स्टॉप डूइंग शोक और स्टॉप क्राइंग. शोक मत करना मतलब दुख मत जताना, डोंट क्राई, ऐसे जब हमें बोलना है देन वी आर यूजिंग दिस वर्ड अलम. एंड दिस अलम अव्यय ऑलवेज एक्सपेक्ट्स द विभक्ति तृतीया. और देखो कितना छोटा सा सेंटेंस है, जिसको हमें स्टॉप करना है, डिनाई करना है, ना बोलना है, वो चीज को हमें तृतीया विभक्ति में लिखना है. सो अलम शोकेन, शोकेन, दिस वर्ड साउंड्स लाइक देवेन, इज इन तृतीया विभक्ति. क्विकली राइट इट डाउन, अलम शोकेन. If you have any other word in your mind, you can also suggest that word here. Alam vivadena. Yes, Harshit. Do you have any doubt? Ma'am, alam here is ma is halant and there ma is dot. Both are right. Both are okay. Yes, beta, because alam, when we are using as a single word, then it should be with alantama, and then it is in sentence, and after it you can see there is sh. Sh is consonant. तो हमने सीखा है ना पहले ही लेसन में कि जब भी कॉन्सोनेंट आता है then the m will become अनुस्वार. Yes. Yeah, so we have to use that grammatical rules everywhere. No problem. Nice question, Harshit. Great that you are observing the differences. Yes, Yashika, I'm absolutely fine. I hope you all are doing well. Yeah, I hope you have written it. Let's move on to the fourth one. Wow, this is very simple one again. Namaha. Namaha means to salute. Now, Namaha avyay expects Chaturthi vibhakti. Shivaya Namaha. Shivaya sounds like Devaya. This word is in Chaturthi vibhakti. अभी शिवाय मतलब भगवान शिव को ही यहाँ पे रखना है ऐसे कुछ नहीं. आप देवाय नमः बोल सकते हो, आप सरस्वत्यै नमः भी बोल सकते हो. उसका स्पेलिंग कुछ इस तरह से है, सरस्वत्यै नमः. फेमिनाइन वर्ड में यही ऐड होता है एंड मैस्कुलाइन वर्ड्स में य ऐड होता है. So if you want, you can also say Saraswatyai Namah, Shivaya Namah, Devaya Namah, Ganapataye Namah.
ओके ऐसे बहुत सारे गॉड्स को आप नमः यानी कि सैल्यूट कर सकते हो. It is by all your choice, but don't forget to use Chaturthi Vibhakti with the word Namaha. Now, is there any doubt regarding Namaha? Pradnya, the meaning of alam is denying something, to say no to something. And now we are discussing Namaha. Yes, अरमान. ओम गंग गणपतये नमः ऐसे हम कहते हैं, बट उसमें से पूरा मत लिखना, बस इतना ही लिखना गणपतये नमः. जैसे ओम नमः शिवाय भी हम कहते हैं, राइट, बट उसमें से ओम नमः शिवाय पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ शिवाय नमः. ग्रेट अरमान, यू आर ऑब्जर्विंग वेरी नाइसली and connecting with the words and sentences you have already heard. That's great. Okay, I hope you have written Shivaya Namaha or Devaya Namaha. Yes, Soham, fantastic. Shri Ganeshaya Namaha. That is also correct. Shri Ganeshaya Namaha. Okay. सो जो भी गॉड आपका फेवरेट है उसकी चतुर्थी विभक्ति यूज करना, बट प्लीज य यूज करना है, यही यूज करना है, या गणपत ये यूज करना है, वो सब डिपेंड करता है आपके वर्ब्स के एंडिंग्स पर. सो वो एक बार चेक कर लेना एंड देन अपना जो भी सेंटेंस है वो बाय हार्ट करना. यस हर्षित, वेरी नाइस. शिक्षकाय नमः, वेरी गुड. यस प्रज्ञा, ओम नमः शिवाय को थोड़ा सा ओम हम नहीं यूज करेंगे, बस शिवाय नमः ऐसा यूज करेंगे, बिकॉज हमें सेंटेंस बनाना है, हमें कोई श्लोक नहीं बनाना है. ओके ओके. नेक्स्ट वी हैव द फिफ्थ अव्यय, दैट इज कृते. कृते मीन्स फॉर समवन, फॉर द सेक ऑफ समवन, किसी के लिए कुछ लेकर जाना. तो आपको यहाँ पे पिक्चर में क्या दिख रहा है? व्हाट इज दिस इन पिक्चर? Gift. Very good, Yashika. So someone is giving gift to other person. So यहाँ पे वैसे ही सेंटेंस बनाया हुआ है. पिता, मे बी दिस हैंड्स आर ऑफ पिता. पुत्रस्य कृते, फॉर सन, उपहारम आनयति. Father brings gift for son. पिता पुत्रस्य कृते उपहारम आनयति means brings. And you can here observe जिसको हमें गिफ्ट करना है, that person should be in Shashti Vibhakti. Hence the expected Vibhakti for Krute is Shashti, written here. In exam, it is not compulsory to write down the Vibhakti. If you are writing it, it is additional part and very good. But it is expected to use that Vibhakti in sentence. Am I clear? It is not expected to write down the Vibhakti everywhere in answer, but it is expected that you should use this Vibhakti properly in sentence, and the word should be underlined. The word in expected Vibhakti should be underlined. So पिता ने पुत्र के लिए उपहार लाया है. किसके लिए लाया है? पुत्र के लिए. So the word putrasya should be underlined. Why? Because it is in Shashti Vibhakti, which is expected by our avyay Krute. वेरी गुड सोहम. मम कृते जलम आनय, ऐसा एक सेंटेंस सोहम ने हमें बताया है. मम कृते जलम आनय. यहाँ पे आप किसको अंडरलाइन करोगे सोहम? वर्ड मम को, बिकॉज वर्ड मम इज इन षष्ठी विभक्ति. मम कृते उपहारम आनय. चलो quickly write down this sentence and then we'll move ahead to the dhatus.
ओके, लेट्स मूव अहेड नाउ। हमने 5 अव्यय देख लिए, अभी हम 5 धातु देखने वाले हैं। बट क्या बस इतने ही धातु एंड अव्यय है? नो, टेक्स्ट बुक में वी हैव मेनी मोर धातु एंड अव्ययस, बट यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, जस्ट वी आर डूइंग सम पार्ट एज अ सैंपल, एंड बाकी का क्या होगा तो दैट विल बी फॉर योर होमवर्क। टोटल 10 धातु एंड 10 अव्ययस है, उसमें से 5 अव्यय एंड 5 धातु आज हम कंप्लीट कर रहे हैं, and other part you have to do as a homework. If you have any doubt, you can ask me in tomorrow's lecture. Again, tomorrow we are meeting for WS, that is writing skills ka practice. So in tomorrow's lectures, you can ask me doubts regarding उपपद विभक्ति. ओके, लेट्स मूव अहेड टू द धातुस। अभी धातुस क्या होते हैं? तो धातुस बेसिकली यहाँ पे हमें दिख रहा है कि गम गच्छ ये धातु दिया हुआ है, उसका हमें वर्ब यूज करना है। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको ये प्रेजेंट टेंस में ही यूज करना है। आई एम यूजिंग प्रेजेंट टेंस बिकॉज इट इज वेरी फेमिलियर एंड इजी टू यूज, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट स्टूडेंट्स शुड यूज दिस present tense as the sentences are very easy. But if you want lot lakar, if you love lung lakar, vigiling lakar, etc., the complicated ones, you can use, and your answers are most welcome. So very simple sentence here formed as balakah shalam gacchati, boy goes to school, and here gama gaccha dhatu expects the dvitiya vibhakti of the destination. आपको जहां पे जाना है वो प्लेस की आपको द्वितीय विभक्ति यूज करनी है। तो यहाँ पे कौन से प्लेस पे जाना है ये बालक को? into the school. So school के लिए जो वर्ड है शाला, it is used in द्वितीया विभक्ति. The word शाला is in द्वितीया विभक्ति. बालकः शालां गच्छति. वेरी गुड सोहम. अहम पाकशालां गच्छामि. अहम के साथ गच्छामि, बालकः के साथ गच्छति. तो अब ये शालाम के जगह पे यू कैन यूज पाकशालाम, यू कैन यूज विद्यालयम, यू कैन यूज मंदिरम. बालकः मंदिरम गच्छति, बालकः पाकशालाम गच्छति, बालकः गृहम गच्छति, बालकः क्रीडांगणम गच्छति. कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो, बट दैट वर्ड शुड बी इन द्वितीया विभक्ति. Yes, Harshit. Aham mandiram gacchami. Beta, please use gacchami if you are using aham. Okay, I hope you have written this sentence. Shall we move ahead to the 7th one? Okay, great. Yes, 7th one is da धातु. दायच्छ भी हो सकता है. दायच्छ यानी कि to give. So दायच्छ धातु always expects चतुर्थी विभक्ति. As we have seen in कारकाणी कि हमेशा जो रिसीवर होता है वो चतुर्थी विभक्ति में होता है. एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दा धातु इटसेल्फ ये जो एक्शन है वो गिविंग का एक्शन है. तो कोई तो रिसीवर भी होगा. इफ यू आर गिविंग समथिंग, अगर मैं कोई भी नोटबुक दे रही हूँ, मैं ज्ञान दे रही हूँ, या फिर मैं पेंसिल पेन कुछ भी चीज किसी को प्रदान कर रही हूँ, इफ आई एम गिविंग दैट थिंग टू समवन, then there should be a receiver who is receiving that thing, and hence here the receiver should be in chaturthi vibhakti. So raja sevakaya dhanam yachati. राजा जो है वो किसको धन दे रहा है? सेवक को धन दे रहा है, एंड इसीलिए द वर्ड सेवकाय इज इन चतुर्थी विभक्ति. आप यहाँ पे चेंजेस भी कर सकते हो. राजा किसी और को धन दे रहा है, राजा बालकाय धनम यच्छति, ऐसे भी कर सकते हो. माता बालकाय धनम यच्छति, ऐसा भी सेंटेंस बना सकते हो. इनफैक्ट माता बालकाय पुस्तकम यच्छति, ऐसा सेंटेंस भी बना सकते हो. शिक्षिका बालकाय ज्ञानम यच्छति, ये सेंटेंस भी करेक्ट है. यू कैन मॉडिफाई योर सेंटेंस एज पर योर विश, बट द रिसीवर शुड बी इन चतुर्थी विभक्ति इज द ओनली कंडीशन. क्विकली राइट इट डाउन.
Okay, let's move ahead to the next one. That is very good, Ayan. Birabalah, Birbal nahi, Birabalah. Veerabalah sevakaya yashtikam yachati. Very good. Veerabalah sevakaya yashtikam yachati. Okay, let's move on to the next one. Rucha rocha. And हमें एक ब्यूटीफुल पिक्चर दिख रहा है. रुचा रोच मीन्स लाइक्स. श्री गणेशाय मोदक रोचते. जिसको पसंद है उसको चतुर्थी विभक्ति में लिखना है, एंड जो पसंद है वो प्रथमा विभक्ति में लिखना है. सी आई एम रिपीटिंग इट अगेन, वहां पे लिख के लो. द वन हु लाइक्स इट शुड बी इन चतुर्थी विभक्ति, एंड द थिंग विच इज लाइक्ड बाय समवन शुड बी इन प्रथमा विभक्ति. जो पसंद है वो प्रथमा विभक्ति में, एंड जिसको पसंद है वो चतुर्थी विभक्ति में होना चाहिए. दिस इज अ कंडीशन बाय रुच रोच. नाउ व्हाट इज दिस रुच रोच? जैसे गम गच्छ होता है, उसमें से हम कौन सा पार्ट यूज करते हैं? द सेकेंड पार्ट, गच्छति. वैसे ही रुच रोच में से सेकेंड पार्ट यूज करना है, रोच. श्री गणेशाय मोदकः रोचते. एंड व्हाई ते? बिकॉज इट इज द वर्ब फ्रॉम आत्मनेपदम. श्री गणेश को मोदक पसंद है. अभी आप यहाँ पे अलग अलग चीजें यूज कर सकते हो. बालकाय मोदकः रोचते, बालकाय पुस्तकम रोचते. And many more sentences you can suggest by your own, but the word should be in चतुर्थी विभक्ति. जिसको पसंद है उसको चतुर्थी विभक्ति में लिखना है. श्री गणेशाय मोदकः रोचते. क्विकली राइट इट डाउन. Yes, very good, Shruti. Shruti said रोहिताय पुष्पम रोचते. रोहित को पुष्प यानी कि फ्लावर पसंद है, तो रोहिताय पुष्पम रोचते. Very good. Okay, I hope you have written it. Let's move on to the ninth sentence. That is for katha, dhatu katha. Katha means to narrate something. So पिता बालकाय कथाम कथयति. आप पिक्चर में भी देख सकते हो. Father is telling story or narrating a story to the boy. So whoever is a listener should be written in चतुर्थी विभक्ति. आप देख सकते हो कि बहुत सारे धातु हैं जिनको चतुर्थी विभक्ति पसंद है. जैसे कि हमने नमः अव्यय को भी देखा. अभी अभी हमने रोच रोच को भी चतुर्थी विभक्ति पसंद है ये देखा. पसंद है मतलब एक्सपेक्ट करता है, एक्सपेक्टेड और गवर्निंग केस. यहाँ पे कथ धातु ऑल्सो गवर्न्स चतुर्थी विभक्ति. बट स्टूडेंट्स, हर बार वो चतुर्थी विभक्ति कोई और अलग अलग पर्पस के लिए यूज करनी है. कभी रिसीवर को यूज करनी है, कभी लिसनर को यूज करनी है, कभी हमें ऑब्जेक्ट के लिए यूज करनी है. तो वो आपको ध्यान देना है. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट इट डाउन. यहाँ पे वी शुड यूज द चतुर्थी विभक्ति फॉर द लिसनर एज कथ धातु का मीनिंग नरेट है. सो पिता बालकाय कथाम कथयति, शिक्षिका बालकाय कथाम कथयति. शिक्षिका विद्यार्थी नहीं लेंगे, छात्राय लेंगे. शिक्षिका छात्राय वृत्तांतम कथयति. व्हाट इज वृत्तांतम? न्यूज. ओके, सो माता बालकाय वृत्तांतम कथयति, माता बालकाय कथाम कथयति. कोई भी आप यूज कर सकते हो, बट कथयति इज नरेटिंग समथिंग, टू टेल समवन इन डिटेल, स्टोरी के जैसे बताना. Okay, now many of you are answering in chat box. Very good. Soham शिक्षिका छात्राय कथाम कथयति. श्रुति अहम कविताम कथयति नहीं, कथयामी. And what is vikhataya? Who is vikhata? Shruti?
नो सोहम अच्छा, विख्यात is your brother. Okay, विख्यात is name of your brother. Okay, fantastic. Then अहम विख्याताय कथां कथयामि और श्रुति विख्याताय कथां कथयति. जब हम थर्ड पर्सन कोई नाम यूज करते हैं देन कथयति, बट इफ यू आर यूजिंग अहम मतलब मैं खुद, देन कथयामि. ओके श्रुति, सो अहम कथयामि एंड श्रुति कथयति, otherwise the both words are same. Okay, now let's discuss the example by Soham. Soham is saying shikshika chhatraya sanskritam kathayati. Nah, it is not that appropriate because you can say संस्कृत कथाम कथयति, संस्कृत स्टोरी नरेट कर रही है, बट संस्कृत हम नरेट नहीं करते, संस्कृत हम सीखते हैं. ओके, तो दैट इज पठति. Yeah, so that's okay, absolutely fine. Don't say sorry for it, just correct it. शिक्षिका छात्राय संस्कृत कथां कथयति. शिक्षिका छात्राय संस्कृत कथां कथयति. Okay, and the last sentence for the day, that is sneha. Sneha means to love someone. Sneha is affection. सो माता पुत्रे स्नीयति. यहाँ पे टास्क ये है स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि ये जो स्नेह धातु है उसमें हमें य मिक्स करना है. इट इज अ धातु फ्रॉम फोर्थ ग्रुप, तो फोर्थ ग्रुप का धातु है मतलब हमें उसमें य मिक्स करना है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि ह एंड य मिक्स है, फोर्थ ग्रुप है इसीलिए. तो स्नेहयति ये अलग अलग नहीं लिखना है आपको, इट इज टुगेदर स्नीयति. माता पुत्रे स्नीयति, एंड जिसके ऊपर हमारा प्यार है, अफेक्शन है, लव है, दैट पर्सन शुड बी इन सप्तमी विभक्ति. जो भी पर्सन को आपको अफेक्शन, लव, प्यार जताना है उसको हमें सप्तमी विभक्ति में लिखना है. सो यहाँ पे आप प्रॉपर नाउन्स भी ले सकते हो, जैसे कि सीता रामे स्नीयति, सीता का राम के ऊपर प्यार था तो सीता रामे स्नीयति. माता पुत्रे स्नीयति, पिता पुत्रे स्नीयति, एक्सेट्रा. द वर्ड शुड बी इन सप्तमी विभक्ति. ओके, क्विकली राइट इट डाउन. Then okay, now next part is निबंधम. हाउ टू ट्रांसलेट इन संस्कृत वो हम कल सीखेंगे, क्योंकि आपको कुछ तैयारी करके आनी है. उसके लिए तैयारी क्या करनी है, तो बेसिकली आपको वर्ब्स के जितने भी टेबल सिखाए गए हैं, लाइक तीतः अन्ति सीथ थ, ऑल्सो अहम त्वम युवाम यूयम, ये सब जो 8th स्टैंडर्ड में आपने सीखा था वो थोड़ा रिवाइज करके आना है आपको, ताकि आप खुद से वो जो सेंटेंसेस है जो कि इंग्लिश में लिखे हुए हैं वो आप ट्रांसलेट कर पाओ. हमेशा याद रखना कि व्हेनेवर यू आर ट्रांसलेटिंग इन संस्कृत सबसे इंपॉर्टेंट होता है वोकैबुलरी. और वो कैसे आता है, तो वो बेसिकली कर्ता एंड क्रियापद से आता है. तो कर्ता एंड क्रियापद क्या है वो जरा कल रिवाइज करके आओ फ्रॉम द 8th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक. एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग one निबंध only and the second निबंध will discuss in the next lecture. So निबंध लेखनम में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आप जैसे 9th स्टैंडर्ड में प्रिपेयर कर रहे हो वही निबंध आपको 10th स्टैंडर्ड में भी है. तो निबंध में सबसे इम्पोर्टेंट होता है, यहाँ पे देखो कुछ
पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला है शब्द संग्रह, वोकैबुलरी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। सेकेंड है विषयाधिष्ठितः प्रश्नः, मतलब जो भी आपको टॉपिक दिया हुआ है उसके ऊपर आपका थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए। अगर आपको टॉपिक है मम प्रियः खगः या मम प्रियः कविः, मतलब आपको कौन सा कवि लेना है, देन कवि का बर्थ ईयर क्या होगा, उसका बर्थ प्लेस क्या होगा, कवि ने क्या क्या लिटरेचर लिखा हुआ है, कवि क्यों फेमस है, कौन से लैंग्वेज में फेमस है, ये सब चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। ये सब क्वेश्चंस आपके मन में आने चाहिए। थर्ड पार्ट है प्रश्नान अनुसृत्य वाक्यानि। क्वेश्चंस तो आ गए, हमने इंफॉर्मेशन भी फाइंड आउट कर ली। नाउ वी हैव आंसर्स टू ऑल दैट क्वेश्चंस। नाउ अनुसृत्य मींस ऑल दैट इंफॉर्मेशन, फ्रेम द सेंटेंसेस। वाक्य बनाने हैं आपको, वाक्य फ्रेम कर लिए, बहुत सारे सेंटेंस मैंने 10 सेंटेंस मैंने फ्रेम कर लिए हैं। अभी आफ्टर दैट द थिंग इज, ओके, नेक्स्ट थिंग इज उत्तमः प्रारंभः समारोपः च। आपकी शुरुआत यानी कि बिगिनिंग शुड बी प्रॉपर एंड समारोपः यानी कि एंडिंग शुड बी प्रॉपर। कॉमन सेंस है, इफ यू आर राइटिंग अ निबंध और ऐसे फॉर मम प्रियः कविः, तो उसका बर्थ ईयर हम स्टार्टिंग में लिखेंगे एंड उसका डेथ ईयर हम एंड में लिखेंगे। दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग, सो वो फॉलो होना चाहिए कि ऐसे नहीं कि मैंने बर्थ ईयर तो स्टार्टिंग में लिखा बट अचानक दूसरे ही सेंटेंस में मैंने बोल दिया कि कवि की डेथ हो गई इन मे बी ईस्वी सन 5 और 6, ऐसे कुछ मैंने लिख दिया कि कवि की डेथ होगी। ऐसे नहीं होता, तो पहले मैं बर्थ ईयर लिखूंगी, देन उसका जो भी कार्य है वो लिखूंगी, लिटरेचर के बारे में लिखूंगी एंड देन उसका डेथ ईयर लिखूंगी। तो ये जो क्रम है वो फॉलो होना चाहिए। आफ्टर दैट संस्कृत सुक्तयः सुभाषितानि च। इफ यू आर यूजिंग सम श्लोकास और सम quotations in your essay, then it will be more attractive and you will score more and more marks. अभी जस्ट लाइक आप कोई भी प्रिय कवि ले रहे हो तो आप मे बी कवि वाल्मीकि ले रहे हो, कवि कालिदास ले रहे हो, भास, बाणभट्ट, जो भी है, संस्कृत कवि पोएट लेना चाहिए ऐसे कुछ नहीं। आप और कोई पोएट भी ले सकते हो, फ्रॉम मराठी, फ्रॉम हिंदी, फ्रॉम इंग्लिश एक्सेट्रा, बट उसकी इंफॉर्मेशन आपको संस्कृत में फ्रेम करना आना चाहिए। And if you are unable to frame that information in Sanskrit, then take a Sanskrit kavi only, like Valmiki, Vyas और कालिदास। ये जो फेमस पोएट्स है उनके बारे में आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी नेट पे भी, तो वो इंफॉर्मेशन आप यूज करो। यूज करते वक्त उनका कोई फेमस सुभाषित है क्या, तो वो सुभाषित आपको वहां पे यूज करना है। या फिर उनकी कोई फेमस कोटेशन है क्या, सूक्ति मतलब कोटेशन, उन्होंने लिखा हुआ कोई कोटेशन क्या, या उनके बारे में कोई कोटेशन होगा। जैसे कि आपने लोकमान्य तिलक के बारे में हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मिळवणारच, ये जो उनका सेंटेंस है बहुत फेमस हुआ। तो ऐसे कोई सेंटेंस आपको ये पर्टिकुलर कवि यानी कि पोएट के बारे में मिल रहे हैं, देन यू कैन यूज दैट सेंटेंसेस आल्सो इन योर निबंध। देन फाइनली वी हैव द लास्ट पॉइंट इज वाक्यानां उचितः क्रमः। अगेन मैंने जैसे कहा उचितः क्रमः मतलब सीक्वेंस, सीक्वेंस करेक्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि पहले ही मैं बोल दूं कि कवि के मदर और फादर का नाम क्या है, ये सेंटेंस से मैं मेरे निबंध की शुरुआत नहीं कर सकी। मे बी मैं निबंध और ऐसे वुड बी स्टार्टिंग विथ अ वेरी फेमस कोटेशन ऑफ कालिदास। कालिदास की कोई फेमस श्लोक या कोटेशन से मेरा निबंध अगर शुरू हो रहा है तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। ऐसा नहीं कि मैं कोई भी सीक्वेंस में ऐसे लिखूं। तो बेसिकली एग्जामिनर ये सब पॉइंट्स देखने वाले हैं कि आपका स्टार्टिंग एंडिंग अट्रैक्टिव हो। यू शुड यूज एनी वन सुभाषित और quotation of relating to that subject, and your क्रम यानी कि your sequence should be proper. Of course, grammatical mistakes should be avoided everywhere because it is writing skills. So आपको अपॉर्चुनिटी है कि लिमिटेड टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं, प्रिपेयर इट। आपको ज्यादा नहीं, कुछ 7 to 8 सेंटेंसेस बस प्रिपेयर करने हैं फॉर 5 मार्क्स। 5 मार्क्स है तो 5 ही सेंटेंस लिखना नहीं है, आपको 7 सेंटेंस लिखना है मिनिमम। क्यों 7 लिखना है, बिकॉज हर एक सेंटेंस को 1 मार्क मिलेगा, बट उसमें सुक्ति भी होना चाहिए। सुक्ति नहीं है तो वो हाफ मार्क या 1 मार्क कट हो सकता है। अगेन कोई सेंटेंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया तो आपको एक एक्स्ट्रा बैकअप सेंटेंस भी रखना है। तो इसीलिए आई एम सजेस्टिंग यू, please make sure you will prepare for 7 sentences at least for
each topic with sukti. 7 sentences plus any quotation about every topic. So now we are discussing one topic here, that is Mama Priyah Kavihi, and the निबंध is about कालिदास. ये अगेन एक कोई डाइजेस्ट से दिया हुआ निबंध है, आप कोई और निबंध भी फॉलो कर सकते हो, एंड यू कैन शो दैट निबंध टुमारो इन द लेक्चर. आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो, मैं ऑप्शन आपके लिए ऑन कर दूंगी, बट मेक श्योर यू विल राइट इट टुडे इटसेल्फ. टुमारो वी आर मीटिंग एट 3 PM. ओके, तो लेट्स रीड दिस एसे. फर्स्ट आप देख सकते हो कि ये एसे का स्ट्रक्चर कैसे है. सबसे पहले यहाँ पे एक श्लोक लिखा हुआ है, पुरा कवीना गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधीष्टित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेर भावात् अनामिका सार्थवती बभूव. सो ये एक श्लोक है फ्रॉम द लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, which is denoting the महती और the exceptional work of कालिदास. कालिदास का वर्क बताने वाला एक श्लोक है. ऐसा कि कालिदास was the number 1 poet in all the Sanskrit poets and अभी तक उसकी जगह कोई नहीं ले पाया है, ये बताने वाला ये श्लोक है. तो ये श्लोक आप यूज कर सकते हो. उसके बाद लिखा हुआ है मम प्रियः कविः कालिदास. तो ऑब्वियस ये सेंटेंस वैसा ही रहेगा. यहाँ पे आप आपका फेवरेट कवि लिख सकते हो. मम प्रियः कविः वाल्मीकि, मम प्रिय कवि व्यासः, बाणभट्टः एक्सेट्रा. सह काली मातुः भक्तः आसीत् अतः सह कालिदासः. वो काली माता का भक्त है. ओके, काली माता का भक्त था, इसके लिए उसका नाम कालिदास है, ऐसे माइथोलॉजिकल स्टोरीज में पता चलता है, एंड इसलिए वहां पे यूज किया हुआ है. कालिदास का काम क्या क्या है, तो उसने त्रीणि नाटकानि रचितानि, उसने 3 नाटक लिखे हैं. रचिता मतलब कंपोज किए हैं. कालिदासस्य अभिज्ञान शाकुंतलम एतम नाटकम विश्व प्रसिद्धम. कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम ये नाटक विश्व प्रसिद्ध, मतलब नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन होल वर्ल्ड इट इज फेमस. एंड बिलीव मी स्टूडेंट्स, ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम है 10th स्टैंडर्ड में आप सीखने वाले हो ये निबंध के बारे में. दिस इज अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी एंड इट इज वेरी फेमस अमंग फॉरेन लिटरेचर. इंडिया से भी ज्यादा फॉरेन में ये स्टोरी बहुत फेमस हो चुकी है. It is written by Kalidas and a very beautiful love story. Then उसका मेघदूतम एतत् खंड काव्यम संस्कृत साहित्य विराजते. देखो अलग अलग टाइप के लिटरेचर उसने लिखे हुए हैं, सिर्फ 3 नाटक नहीं लिखे, उसने खंड काव्य भी लिखा. व्हाट इज खंड काव्य? तो शॉर्ट पोएट्री. काव्य मतलब पोएट्री एंड खंड मीन्स शॉर्ट पोएट्री. हमें पता है कभी कभी कोई पोएट्रीज होती है जो बहुत लॉन्ग होती है, उसकी सीरीज पे सीरीज आते. पोएट्री ऐसे नहीं, कोई आपका ड्रामा भी हो सकता है, जैसे कि आप सीरीज अगर बोल सको तो बहुत सारे सीरीज अभी नेटफ्लिक्स, यूट्यूब या जो भी आप प्रेफर करते हो उसमें दिखता है हमें. बेस्ट एग्जांपल इज हैरी पॉटर. हमें पता है हैरी पॉटर्स के बहुत सारे पार्ट्स है, उसको हम कहेंगे महाकाव्य. हैरी पॉटर एक महाकाव्य है. एंड खंड काव्य मतलब बहुत छोटा सा काव्य होता है, मैक्सिमम 2 पार्ट्स में ही होता है. ओके, तो वैसे ही कालिदास ने जो है मेघदूत नाम का एक खंड काव्य लिखा, छोटा सा काव्य मेघदूत नाम का. एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, कालिदास ने रघुवंश एंड कुमार संभव ऐसे 2 महाकाव्य भी लिखे. ओके, अभी अभी मैंने आपको बताया महाकाव्य क्या होता है. कभी भी महाकाव्य वर्ड आए तो क्या याद करना है? हैरी पॉटर. हैरी पॉटर के बहुत सारे पार्ट्स है, वैसे महाकाव्य के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. ये कुमार संभव, रघुवंशम, इसके भी 7, 8, 9 ऐसे पार्ट्स है, बहुत सारे पार्ट्स है. एंड हेंस ये जो कालिदास है उसने अलग अलग टाइप्स के काव्य लिखे, मतलब ड्रामास भी लिखे, पोएट्रीज भी लिखे, शॉर्ट पोएट्रीज, लॉन्ग पोएट्रीज एंड बहुत कुछ लिखा है. इसीलिए अतः सह यानी कि वो महाकवि इति उपाधिना विभूषित, उसको एक उपाधि टाइटल मिल गया महाकवि. संस्कृत का सबसे बड़ा कवि कौन है? तो कालिदास है. एंड ऑल्सो यहाँ पे लास्ट में देखो उसकी एक उक्ति फेमस है, उपमा कालिदासस्य. उपमा अलंकार आपने सुना हुआ रहेगा इंग्लिश में, जिसको हम सिमिली बोलते हैं. संस्कृत में सिमिली अगर किसी कोई पोएट ने ज्यादा से ज्यादा यूज की है एंड बहुत ही इफेक्टिवली ब्यूटीफुली यूज की है अपने पोएट्रीज में, अपने लिटरेचर में, देन दैट इज कवि कालिदास. एंड हेंस कहा जाता है उपमा कालिदासस्य. उपमा किसकी है? तो उपमा कालिदास की है, क्योंकि उसने ही बहुत ब्यूटीफुली यूज की है देन एनी अदर पोएट. ओके, सिमिली अलंकार, सिमिली ये फिगर ऑफ स्पीच किसने संस्कृत में बहुत अच्छे से यूज किया है? तो कालिदास ने. इसीलिए सिमिली किसकी? तो सिमिली कालिदास की, ऐसे यहाँ पे कहा गया है. तो यू कैन ऑब्जर्व कि बस
कुछ गिन चुन 7-8 सेंटेंस में कालिदास के बारे में बहुत कुछ यहाँ पे बताया गया है। तो ऐसे ही आपको भी एक एक निबंध लिखना है। अगर किसी को डिफिकल्ट लग रहा है, यू कैन बाय हार्ट दिस निबंध ऑल्सो फॉर 9th as well as 10th. एज आई एम सेइंग, इट इज नॉट नेसेसरी कि सब लोग सेम निबंध लिख रहे हैं तो सबको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये नहीं है पार्ट. It is important to write down the perfect essay without grammatical mistake in your exam. So you can refer this nibandha also, take a screenshot of it, or else you can frame your own nibandha and show it to me in tomorrow's lecture. Okay, is there any doubt now? Okay, I hope you have understood Upapad Vibhakti and essay. No, Soham, Nibandha is not there for composite in 9th as well as 10th, so don't worry. You only have Upapad Vibhakti in 9th as well as 10th. Composite students, please remember you don't have essay in 9th as well as 10th. Today we have seen only one topic of essay, that is Mama Priyah Kavihi. Okay? Yeah. So is there any requirement from your school that you want any other topic from the essay? Then let me know in the chat box now. Tomorrow we are discussing, I think, Mama Priyah Khagah. And also translate into Sanskrit. Other than this, is there any part from writing skills you have extra from your school? Please let me know today or tomorrow in the chat box. We will discuss it. Okay. So we'll stop here. Thank you everyone. Yes, Arman. Same to you. Have a great day and Punar Milamaha.